want to start from today, the first thing is that you should, once you move out of this hall, you should straight away go and read some books. If you are clear about which books to read. If you have not done that exercise, then at this moment, you should first go through UPSC syllabus, and most importantly, peruse question papers of last few years. Then you make up your mind that other than the compulsory subjects, how are you going to approach your optional? Which subject will be the one which you can really go through and opt as one of your optionals. आपके सामने यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने कोचिंग करी भी है और नहीं भी करी है. तो इसका अच्छा जवाब ये रहेगा कि आप किस लेवल पर स्टैंड करते हैं. क्या आपको क्लैरिटी है कि एग्जाम की डिमांड क्या है? डू यू हैव इनफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिमांड्स ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन पेपर? दूसरी बात कि आपके आसपास क्या कोई ऐसा शख्स है who can be your mentor so that you don't need coaching? And the third thing is that physical coaching has itself become quite inconsequential in the current years because most of the courses are also offered online through YouTube channels. So coaching, शायद आप ये सवाल आज से 5-7 साल पहले पूछते, 10 साल पहले पूछते तो इसका रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि कोचिंग का मतलब होता था फिजिकली क्लास में जाके इस तरीके से गर्मी में पसीने में आप अपनी किताब को हवा करो, तो वो फिजिकल कोचिंग का कंसेप्ट था. तो कोचिंग आपको करनी है नहीं करनी है इसका डिसीजन आपको बहुत अच्छे से इवेलुएट करके लेना पड़ेगा क्योंकि किसी इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट में एक आंसर नहीं है जिससे मैं यहाँ बोल के जाऊँ जी आप कोचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको अपने आप को इवेलुएट करना है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं, और वो कैसे करना है. उसके लिए जैसे मैंने बोला आप यूपीएससी का सिलेबस स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, अटेम्प्ट फ्यू क्वेश्चंस, whether you are up to mark or not. If you are not up to mark and you need some hand holding, then you must go for coaching. In the age of specialization, the journalists try to lose the workplace at some level. तो बहुत से लोग हैं जिनको आगे you have to update yourself, you have to upgrade your skill set. जो specialization है, if you talk about chemical fertilizer industry, so you would have a secretary to the government of India who would be dealing with the fertilizers department, chemical fertilizers department, but at the same time they also need somebody who would be doing the R&D, who would be trained already in this sector. बहुत सारे lateral entry वाले जो लोग हैं they have not yielded the intended results. तो lateral entry का जो concept है, it was expected to find traction among the population. It was expected to deliver better, but the results are yet to be seen. No branch is bad enough to make you unemployed and unemployable. Let that be very clear. तो आप इसलिए जिस ब्रांच में आए हैं इसको अच्छे से करिए और बाकी लोगों की बातों पे ध्यान मत दो कि खराब है या अच्छी है. इसलिए आपको जो ब्रांच मिल चुकी है उसको अच्छे से पढ़िए पहले. सेकंड क्वेश्चन, आपको आगे यूपीएससी करना है नहीं करना है उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए आपके पास यू हैव एन नंबर ऑफ टिप्स दैट हैव बीन पुट अप ऑन दिस बोर्ड. तो आप धीरे धीरे फैसला कर लीजिए, अभी काफ़ी टाइम है. आपकी प्रिपरेशन का पीक कब आना चाहिए? जब आप यूपीएससी मेंस फर्स्ट रैंक लिखते हैं तब आपका पीक आना चाहिए. आप अगर पहले पीक कर देते हैं दैट इज आल्सो रिस्की बिकॉज देन यू लूज इंटरेस्ट, फिर आपको एक बड़ा लेंथी प्रोसेस लगता है. And I strongly believe that the success or failure in UPSC is completely dependent upon the intensity of your passion to crack this exam. आप इस एग्जाम को अपने लिए क्रैक करने चैलेंजेस समझ लेंगे and you then start dreaming with the idea of becoming an IAS officer, IPS officer, foreign whatever. तो जब आप उस तरीके की you start living with this idea in everyday life. When you start living with the idea, when you identify yourself, your future, when you identify your future with this particular kind of profession,
तब आपका रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग कहते हैं कभी सीट्स कम है, अब तो सीट्स भी ठीक आ रही हैं, पहले 350 भी किसी ज़माने में हुआ करती थी, 2090s में लोग बोलते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही सीट पर फोकस करो। आप दूसरों की सीट्स, टोटल सीट्स कितनी हैं, कम है ज़्यादा, इसको भूल जाओ। बस एक ही काम करो आप कि एक सीट आपकी होनी चाहिए। अब आपको क्या बनना है वो रैंक पर डिपेंड करेगा। देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैं बताता हूँ आपको। स्ट्रेस आपको तब होता है जब आपको बहुत आपके माइंड में ऐसे आइडियाज आते हैं विच लीड टू मोर अनसर्टेनिटी इन योर माइंड अबाउट द सक्सेस, एंड सेकंड द फियर ऑफ फेलियर। अगर मेरा यूपीएससी नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, घर वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरा कैरियर कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा कैरियर मेरा, मेरे लिए क्या दुनिया और भी बाकी है या यही दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपको टाइम टू टाइम स्ट्रेस देते रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। एक तो ये है कि यू शुड बी मेथोडिकल इन योर स्टडीज। आप एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल को डेली फॉलो कीजिए। जब आप उसको फॉलो करते रहेंगे रिलीजियसली, तो जब आप व्हेन यू विल रिटायर टू योर बेड, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन होगी। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट का पहली चीज है। दूसरा, आपको जैसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी दिशा में चलेगी तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली भी कम होने लगेगा। आपको लगेगा कि यू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, यू आर मूविंग ऑन द राइट पाथ टू क्रैक दिस एग्जाम। और एक चीज और है कि डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, डू सम फिजिकल एक्सरसाइज इन द इवनिंग और मॉर्निंग। तो स्ट्रेस आपको मैनेज कैसे करना है? नंबर वन, कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच लीड टू योर स्ट्रेस। द फैक्टर्स व्हिच लीड टू योर स्ट्रेस वुड बी डिफरेंट देन द फैक्टर्स दैट लीड टू हर स्ट्रेस। ठीक है ना? आपको हो सकता है स्ट्रेस इसलिए हो कि आपको फियर ऑफ फेलियर है, आपको फियर ऑफ फेलियर हो सकता है इसलिए स्ट्रेस हो। इनको स्ट्रेस इसलिए हो कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, इसको कवर करने में जमाने लग जाएंगे। तो देखो, दिल मजबूत रखो। लेट मी टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली दैट नो कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन रिफॉर्म यू और ट्यून योर पर्सनैलिटी in a month's time or 2 months' time to make you wade through the personality test. जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जाते हैं, थोड़ा सा आप बोर्ड्स आपको इंटरव्यू लेके उनका प्रोफाइल पढ़ लीजिए। तो जब बाकी लोग कोचिंग में दौड़ रहे थे कि ये फैक्चुअल डेटा हो, भाई आपका मेंस हो चुका है, आपको वो थोड़ी जरूरत है दोबारा से फैक्चुअल डेटा कलेक्ट करने की। तो I was actually doing a lot of research on board members. If you want to respond to a board chaired by a retired chief secretary or a former police officer, आपके बड़े डिफरेंट डायनेमिक्स होते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब में सेम रख दो, लेकिन आंसर आपको फिट होने चाहिए वैसे ही। अब टाइम मैनेजमेंट का जो सिलसिला है उसमें आप एक तो आपकी जो चीज़ें आपको लेफ्ट राइट डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे दूर रहिए। और 24 ही घंटे हैं, अगर आप में हिम्मत है 24 घंटों में 48 घंटे की पढ़ाई करो, ठीक है? अगर इतनी हिम्मत रखते हो 24 घंटों में 48 घंटे की पढ़ाई भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट देन आपको जो आपकी क्लॉक है, जितने 24 घंटे का टाइम दिखा रही है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेंटली मोर टफ एंड यू विल हैव टू बी टफ इनफ। सेलेक्ट होने के बाद का जो फेज होता है, जब आप सेलिब्रेशन के मूड में होते हो, जब आपके घर वाले रिश्तेदार आपके लिए पलके बिछाते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा मीडिया का कवरेज, सो यू फील दैट इज दिस द सेम वर्ल्ड इन विच यू लिव और इट इज अनदर प्लैनेट। तो आपको इस तरीके के ख्यालात बहुत आते हैं। उस वक्त आप सोचते हो कि जिंदगी ऐसे ही रहने वाली है और बहुत बढ़िया होने वाला है, हमें ऐसे ही ऐसी फेम, पॉपुलरिटी और आगे के लिए भी हमें सब कुछ ऐसे ही रहेगा। लेकिन once you get into the profession, the real grinding starts. Ultimately, officials are not superhumans, so they live in the society. एक बात है, जब मैंने सब बातों की एक ही बात कही, that the success or failure in UPSC is strongly dependent upon the intensity of your passion to crack this examination.